Now we're going to talk about embryo structure, type, and development. In the last lecture, we spoke about the how exactly the endosperms are going to be developed, and in today's class, we're going to talk about the how the embryo is going to develop. There are two types of embryo which we need to understand. One is called monocot, and second one is called as a dicot. We are going to focus on the development of the dicot, and we'll compare the monocot embryo with the dicot embryo. So the first question arises, what exactly is the embryogeny? Embryogeny का मतलब क्या होता है? Embryogeny का मतलब ये होता है, these are the total kind of changes, some total changes that occur during the development of a mature embryo from a zygote or oospore. zygote और oospore से mature embryo कैसे बनता है? How the mature embryo are going to be formed, how the mature embryo are going to be formed from the zygote or oospore. This phenomenon is called as a embryogeny. We call it as a embryogeny. इसको हम embryogeny बोलते हैं. So embryogeny का मतलब होता है generation. Geny is always a generation. Generation is always a फॉर्मिंग द एम्ब्रियोस. हम लोग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. We're going to talk about the embryogeny in case of a dicot plant, dicot seed. So what exactly happened? There is a formation of zygote. I would like to explain you first with the diagram and then we'll go in theory. Yes, sir? So everybody focus on the diagrammatic part first and then we'll move on to theoretical part. This particular structure is called as a structure. This A part is nothing but the zygote or oospore. यहाँ पे लिखा हुआ है A is nothing but the zygote. So this particular structure is called as a zygote. If you don't like this word, you can use the word called as a oospore. So these two terminology has to be very clear. Now this zygote will undergo mitosis. जब ये माइटोसिस करेगा और ये माइटोसिस करेगा along the longitudinal wall, longitudinal axis or transfer axis, so the answer will come the transfer axis. Yes sir, ध्यान से समझना. Can you recollect the पैरामीशियम में बाइनरी फिशन कैसे होता है? पैरामीशियम में बाइनरी फिशन कैसे होता है? Which type of binary fission occur in paramecium? So if you remember, in case of paramecium there is a transverse binary fission. Absolutely correct, there is a transverse binary fission. डायग्राम कैसे ड्रॉ करते थे? ऐसे डायग्राम हुआ करता था और इधर डिवीजन किया करते थे एंड ये एरो ऐसे जाया करता था एंड देयर इज वन पैरामीशियम, देयर इज अ सेकंड पैरामीशियम. यस, सो यू कैन सी. और वो डायग्राम यूग्लिना का कैसा हुआ करता था? डायग्राम ऐसा हुआ करता था. ये डायग्राम एरो ऐसे आया हुआ करता था और दिस इज वन यूग्लिना एंड दिस इज सेकंड यूग्लिना. ठीक है, ये डायग्राम हुआ करता था. So this is going to be taking place in the longitudinal axis. This is going to be taking place in the transverse axis. Concept is very nice. Yes sir. So NEET is always going to ask the question, zygote का first division कौन से axis में होगा? तो you need to understand it is a transverse wall. ये transverse wall में होगा. That is this axis, transverse axis. पक्का? This is your one important question that NEET is going to ask, or you will always get confused. 38 chapter पढ़ने के बाद हमेशा इस बात पे confusion रहेगा ये longitudinal था या transfer था. So it's a beautiful diagram. It's a very beautiful diagram. इसमें color से depict किया गया है. The pink color structure is called as a embryo cell. जब दो सेल बनते हैं और transfer division होता है, the one cell is going to be larger. These are unequal size cell. You can see this cells is going to be larger and you can also compare with the other cell. You can see ये जो नीचे वाला cell है embryo cell, it is going to be smaller and suspensor cell है वो क्या है? large size का cell है. I think larger and basal cell is called suspensor cell and the smaller the cells which is present towards the antipodal area. So these cells are going to be present at the एंटीपोडल एरिया. ये एंटीपोडल एरिया पे प्रेजेंट. अगर ये एंटीपोडल एरिया पे प्रेजेंट है
So you must be understanding कि if it is going to be present in the antipodal area, if this area is the antipodal area, antipodal area के सामने जो भी एरिया आएगा दुनिया उसको माइक्रोपाइल कह जाएगा. अंडरस्टूड. आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली नाइस. ये माइक्रोपाइलर साइड में रहेगा और ये बेसल एंड पे रहेगा, मतलब एंटीपोडल एरिया के साइड में प्रेजेंट रहेगा. यस सर. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, एंटीपोडल एरिया बाहर के साइड में रहता है, ऊपर के साइड में. अगर इफ इट इज एनाट्रोपोस ओव्यूल, सो यू कैन गेस माइक्रोपाइलर जो सेल होगा वो नीचे के साइड में होगा. तो ये नीचे के साइड में है. यस सर, नीचे के साइड में है, इसलिए हम इसको बेसल सेल बोलते हैं. जो भी नीचे आएगा बेस बन जाएगा. So it is going to be the basal cell, no doubt about it. It is going to be the basal cell. ये basal cell है. I think concept is very nice. Concept is very clear. अब ये जो सस्पेंसर है, अरे बाप रे बाप, इसका नाम है सस्पेंसर. क्या है इसका नाम? सस्पेंसर. So if it is anatropous ovule, suppose this is an anatropous ovule and there is going to be the zygote. Yes sir, zygote बना है यहाँ पे. और zygote ये जब ये दो सेल बना तो ये जो लार्जर सेल्स है, नो द स्मॉलर सेल्स, सपोज ये ओव्यूल्स है, दिस इज गोइंग टू बी द एम्ब्रियोनिक सेल, दिस इज गोइंग टू बी द लार्जर सेल एंड दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलर सेल. ये जो स्मॉलर सेल है इसको हम लोग सस्पेंसर सेल बोलेंगे एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक सेल. कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? 100% क्लियर है ना? डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया. एनाट्रोपोस ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. एनाट्रोपोस ओव्यूल के डायग्राम में टिप पे माइक्रोपाइल पे जाइगोट था. वो जाइगोट ट्रांसफर डिवीजन किया. ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद दो सेल बने. अनइक्वल सेल डिवीजन था. एक सेल बड़ी साइज का था, दूसरा सेल छोटी साइज का था. जो सेल बड़ी साइज का था वो बेस पे पाया जाता है, वो माइक्रोपाइल के एंड पे पाया जाता है. नीट पूछेगा कि एम्ब्रियोनिक सेल कौन सी साइड में प्रेजेंट है? एंटीपोडल सेल के साइड में प्रेजेंट है. ऐसा बोलने का बोल पाओगे, मार्क कर पाओगे. नॉलेज के साथ अच्छे से एप्लीकेशन भी आना चाहिए. इज दैट क्लियर? और हाँ, गोला करने भी आना चाहिए, है ना? अच्छे से गोला करने भी आना चाहिए. गोला को गोल समझने का. तो आपको ना 180 गोल्स दिए जाएंगे नीट में. 180 गोल्स, है ना? तो आप हॉलीबॉल और वो जो गोल मारते वो खेल का भी आप प्रैक्टिस कर लो. ना एवरीबडी फोकस हियर. ये जो स्मॉल साइज का सेल है ये एम्ब्रियोनिक सेल है. ये सस्पेंसर है. सस्पेंसर नाम कहीं सुना हुआ है. आई थिंक ये गाड़ियों में पाया जाता है. सस्पेंसर ये वो स्ट्रक्चर कहलाता है जो सस्पेंड करता है. सस्पेंड करना मतलब जॉब से निकाल देना, ओपन एनवायरनमेंट में रख देना. जॉब से निकाल देना. सस्पेंड करना मतलब जॉब से निकाल देना. जिसका जॉब नहीं है वो ओपन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि जॉब नहीं है, तो ही इज फ्री, somebody कैन टेक हिम. यस सर. तो सस्पेंसर इसका नाम इसका काम बताता है. ये किसी को तो सस्पेंड कर जाता है, ये सस्पेंड करता है. इसका नाम है सस्पेंसर सेल. तो ये सस्पेंड करेगा. किसको सस्पेंड करेगा? ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ना, इसको सस्पेंड करेगा ऊपर की साइड में. जैसे जैसे आगे के डायग्राम में देखो, यहाँ पे देखो, ये सस्पेंसर सेल ग्रो होता जाएगा. ये सस्पेंसर सेल है, ये सस्पेंसर सेल है इतना, ये इतना सस्पेंसर सेल है, ये इतना सस्पेंसर सेल है. CDE को कंपेयर करो ना. अरे देख के कंपेयर करो ना. अरे क्या चेंजेस आते हैं? अरे इसका लेंथ बढ़ जाता है. सस्पेंसर का लेंथ बढ़ गया है. डू यू अंडरस्टैंड? जितना ज्यादा सस्पेंसर ग्रो होगा उतना ज्यादा ये जो एम्ब्रियोनल सेल है वो एंडोस्पर्म के अंदर सस्पेंड होगा. मतलब एंडोस्पर्म के बीच में आ जाएगा. जितना ज्यादा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के बीच में रहेगा उतना ही अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड
इस एम्ब्रियो को मिलेगा। यू नो वेरी वेल, नो जीवन इज पॉसिबल विदाउट जीवन। जीवन के बगैर कोई भी जीवन पॉसिबल ही नहीं है। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर क्या करना है? करना क्या है फिर? करना ये है कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर को सस्पेंड करना है, और सस्पेंड करने के लिए हमारे पास सस्पेंसर, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है वो सस्पेंसर है। ठीक है, सस्पेंसर अपना लेंथ बढ़ाएगा नंबर ऑफ सेल डिवाइड कर, और ये एम्ब्रियोनल सेल एंडोस्पर्म में जाएगा, उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट और जीवन फूड जो भी है वो उसको मिल जाएगा। यस सर। So now NEET is going to ask the structure ki who is the filamentous structure? Then you have to speak up. Suspensor is the filamentous structure. NEET is going to ask question how many cells are present in suspensor? तो आपको बोलना है 6 to 10 cells are going to be present in suspensor. बोल पाओगे? ऐसा ही बोलना है आपको। यस सर, लिख के आना है, गोला करके आना है। यस सर। सस्पेंसर का काम क्या है? नीट पूछेगा, आप जवाब देना। इट हेल्प द पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। जैसे जैसे सस्पेंसर ग्रो होता जाएगा, एम्ब्रियोनिक सेल या एम्ब्रियो हमेशा एंडोस्पर्म में जाता जाएगा, इसको अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर। अब हम लोग फोकस करते हैं इसी सस्पेंसर सेल पे। ये जो सस्पेंसर सेल है, इसमें से ये जो बेस का सेल है, फर्स्ट सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, है ना? ये जो फर्स्ट सेल ये स्वेल हो गया। कैन यू सी? ये स्वेल हो गया। देखो ना, बाकी के सेल कैसे हैं? इनको खाना मिलना नहीं है, जीवन नहीं मिला इनको। ये सेल कैसा हो गया? स्वेल हो गया। ये जो सोलन स्ट्रक्चर है, ये जो फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, ठीक है, सस्पेंसर का ये जो फर्स्ट सेल है, उसने क्या किया है? खुद को स्वेल कर दिया है। खुद को क्या कर दिया है? खुद को स्वेल कर दिया है। यस सर। खुद को क्या कर दिया है? खुद को स्वेल कर दिया है। कौन से एंड पे? टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, बिकम सोलन, एंड वो सोलन स्ट्रक्चर को हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हॉस्टोरियल सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हॉस्टोरियम बोलते हैं। कैन एनीबडी डिफाइन हॉस्टोरियम? और हॉस्टोरियम आपको कहाँ पे पढ़ाया गया? उस चैप्टर का रेफरेंस दो, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द हॉस्टोरिया, इसको डिफाइन करो। अगर आप डिफाइन करेंगे तो अच्छी बात होगी, otherwise it is fine, it's okay, no problem. Yes sir. So I'll give you some time. You can just what is single word में meaning of hostelria? Single lining, या एक या दो वर्ड ले लो। कौन से प्लांट में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? यस, सो इट्स फाइन। यस सर। पैरासाइटिक प्लांट में ये पाया जाता है। कस्कुटा नाम तो सुना होगा, पैरासाइटिक प्लांट। और पैरासाइटिक प्लांट में ऐसा स्ट्रक्चर जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर जाता है, सुनते रहो सब लोग, पूजा, सारा, अदिति, एवरीबडी विल फोकस, है ना? कुछ लोगों का नाम नहीं लिया, वो भी खुद को समझ लो। यस सर। ओके, सो ये एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है, पैरासाइटिक स्ट्रक्चर है, ये सकिंग स्ट्रक्चर है, ये पेनिट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इसको हम हॉस्टेरिया बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉस्टेरिया? हॉस्टेरिया का है कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। इसकी सकिंग पावर, इसकी एब्जॉर्बिंग पावर, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, एंड दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, so that nutrient should be given to these cells as well. So hostorium is a parasitic structure. It help in absorbing the nutrient or help in absorbing the food. Yes sir, is that clear? और ये cell to cell इसको transfer करता है। Okay, so this was the story about the first cell. Can we talk about the last cell?
Can we talk about the last cell? This is the first cell of the suspensor. And who is the last cell of suspensor? ये जो last cell है, which is this particular cell, where to name it? Everybody bago. This is the last cell. ये last cell. You have to draw this diagram in your notes and submit the notes. To draw this diagram. And the same diagram. The last cell, ये जो लास्ट सेल है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस. वी कॉल दिस सेल एज अ हाइपोफाइसिस. ये सेल को हम हाइपोफाइसिस सेल बोलेंगे. हाइपोफाइसिस. यस सर. हाइपो क्यों बोला? अरे हाइपो क्यों बोला? क्योंकि सबसे नीचे है, बिलो है. फाइसिस का मतलब होता है प्रोसेस. तो ये एक प्रोसेस है. फाइसिस वर्ड कहाँ पे आया हुआ है? स्केलेटन चैप्टर में आया हुआ है फाइसिस, है ना. तो फाइसिस का मतलब होता है प्रोसेस. तो ये एक लंबा सा प्रोसेस है. ये एक लंबा सा प्रोसेस है. और ये प्रोसेस में जो फर्स्ट सेल है वो हॉस्टोरियल सेल बनाता है. जो लास्ट सेल है वो हाइपोफाइसिस सेल बनाता है. क्या बनाता है? हाइपोफाइसिस सेल बनाता है. अब ये जो हाइपोफाइसिस सेल है इसका फंक्शन क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यस सर. ये जो हाइपोफाइसिस सेल है ये रेडिकल और रूट कैप देगा. क्या देगा? रेडिकल. तो आई थिंक आई कैन राइट हियर these cells are called as a hypophysis. And what is their function? Their function is to give the radical and root cap. Radical and root cap. ठीक है? Radical and root cap. Okay. So I think it's fine. I think this part is done. I think मैंने सस्पेंसर का पार्ट है वो आपको पढ़ा दिया हुआ है. इसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए. ये जाइगोट है, oospore है. ये ट्रांसफर एक्सिस में डिवाइड होगा अनइक्वल तरीके से. एक लार्ज सेल होगा, एक स्मॉल सेल होगा. लार्ज सेल सस्पेंसर सेल बोलेंगे और स्मॉल सेल को एम्ब्रियो सेल बोलेंगे. सस्पेंसर सेल सस्पेंसर स्ट्रक्चर बनाएगा. सस्पेंसर सेल ट्रांसफर एक्सिस में डिवाइड होता जाएगा. इसमें 6 to 10 सेल्स पाए जाएंगे. इसमें जो फर्स्ट सेल होगा जो माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट है वो सोलन हो जाएगा, हॉस्टोरियल सेल बनाएगा, हॉस्टोरिया बनाएगा एंड दे विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट और ट्रांसफर करेंगे. एंड द लास्ट सेल, द सेल विच इज अटैच्ड टू द embryo is called as a hypophysis cell. And these hypophysis cells are going to form the radical and root cap. I think that is fine. This is backup for suspension. Suspension cell मैंने आपको बता दिया. Yes sir. Now we're going to talk about the embryo cell. Yes sir. Please focus here. ये zygote है. Zygote elongate करेगा and they will divide. This is divide by transverse wall into two unequal cells. This is important. Unequal cell. Unequal cell means one cell is going to be large, second one is going to be small. The largest cells are called as a basal cell because base पे है. ये micropyle पे है, उसको हम लोग base बोलेंगे. And इसको हम suspensor cell बोलेंगे. Concept clear? Other towards the antipodal cell is termed as a terminal cell. अगर ये basal है तो ये terminal है and इसको हम embryo cell बोलेंगे. Concept is clear? Very good. Then ये जो suspensor cell है, ये जो suspensor cell है, they divide transversely in a few time to produce the filamentous suspensor of 6 to 10 cells. Suspensor it help in pushing the embryo in the endosperm. Endosperm में push करने के लिए भेजा जाएगा ताकि they should acquire the proper nutrient. Then the first cell of the suspensor towards the micropylar end becomes swollen and they function as a hostorial, which is an absorbing structure, food absorbing structure. This is the story of a first cell. And what's the story of the last cell?
What's the story of the last cell? The story of the last cell is a suspensor at the end of adjacent to the embryo is known as the hypophysis. इसको हम बोलेंगे hypophysis. They later give rise to radicle and root cap, as I already said. So, I think this part called suspension is very clear to you. Everybody will focus. Now we're going to talk about the how this particular embryo cell is going to be developed. This is a one-celled embryo cell which is going to be present. नीट का पहला क्वेश्चन होगा कि ये कौन से साइड में प्रेजेंट है, तो आपको बोलना है कि एंटीपोडल साइड में प्रेजेंट. ठीक है. नाउ ये जो एम्ब्रियोनिक सेल है, इट विल अंडरगो 2 वर्टिकल डिवीजन. ये 2 वर्टिकल डिवीजन करेगा. जब ये 2 वर्टिकल डिवीजन करेगा तो 1 से 2 सेल और 2 से 4 सेल, मतलब पहली बार डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगे और दूसरी बार डिवीजन होगा तो टोटल 4 सेल बनेंगे. जब 4 सेल्स बनते हैं तो ये स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट स्टेज बोलते हैं. क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 सेल. डन. बट दिस 2 वर्टिकल डिवीजन इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय 1 ट्रांसफर डिवीजन. एक ट्रांसफर डिवीजन होगा और जब ये ट्रांसफर डिवीजन होगा तो टोटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल और वो 8 सेल को हम ऑक्टेन स्टेज बोलेंगे. आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. 2 वर्टिकल डिवीजन, 4 सेल, देन तीसरा ट्रांसफर डिवीजन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेन स्टेज. 8 सेल्स आर गोइंग टू बी फॉर्म. और वो जो 8 सेल का स्ट्रक्चर है वो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दिस इज द 8 सेल स्ट्रक्चर. ये 8 सेल स्ट्रक्चर है. ठीक है. और ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर है इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक है एपीबेसल और दूसरा है हाइपोबेसल. तो दिस पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड एज अ हाइपोबेसल सेल. हाइपोबेसल सेल हम इसको बोलेंगे. और ये जो हाइपोबेसल सेल है वो सस्पेंसर के नजदीक में रहेगा. इट इज गोइंग टू बी क्लोज टू द सस्पेंसर. हाइपोबेसल सेल है. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ हाइपोबेसल सेल और इट इज क्लोज टू द सस्पेंसर. और ये हम लोगों का जो लाइट कलर है, हल्का पिंक कलर है, दिस पर्टिकुलर सेल्स आर कॉल्ड एज अ सस्पेंसर और सस्पेंसर के नजदीक में हाइपोबेसल सेल. ठीक है. नाउ देयर इज अ एपीबेसल सेल. एपीबेसल सेल्स आर these particular cells, they are going to be the terminal cell. ये terminal cells है. ठीक है. ये टर्मिनल सेल है, एंड का सेल है, इसलिए हम इसको एपीबेसल सेल बोलते हैं. सो वी कैन समवेयर ट्राई एंड मैनेज राइटिंग देयर नेम. दिस इज कॉल्ड एज अ एपीबेसल सेल. और इसको हम टर्मिनल सेल्स भी बोलेंगे. इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है. इसका फ्यूचर इतना अच्छा है कि ये आपको 2 कॉटलीडॉन प्लस प्लूम्यूल आपको देगा ही देगा. 2 कॉटलीडॉन और 1 प्लूम्यूल आपको देगा ही देगा. तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. एपीबेसल और टर्मिनल सेल, हाइपोबेसल सेल, ये सस्पेंसर को अटैच रहेगा. टन हो गया. नाउ ये जो एपीबेसल सेल्स है इवेंचुअली फॉर्म द 2 कॉटलीडॉन. ये 2 कॉटलीडॉन फॉर्म करेगा एंड 1 प्लूम्यूल फॉर्म करेगा. पक्का. अब ये जो हाइपोबेसल सेल्स है ये आपको देगा हाइपोकॉटिल. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज गोइंग टू गिव यू दी हाइपोकॉटिल. आपको देगा. ये हाइपोकॉटिल यहाँ पे आ गया है. गुड. सुपर्ब. Now finally we have a 8-celled embryo जिसको हम ऑक्टेन स्टेज बोलते हैं. और ये ऑक्टेन स्टेज जो बना हुआ है, ये ऑक्टेन स्टेज अभी पेरीक्लिनिकल डिवीजन करेगा. कौन सा डिवीजन करेगा? पेरीक्लिनिकल. तो अब तक हमने जहां तक पढ़ा हुआ है उसका हम थियरी देख लेते हैं, अदरवाइज वी विल बी गेट कंफ्यूज. एवरीबडी विल फोकस हियर. ये एम्ब्रियोनल सेल है. इट अंडरगो 2 वर्टिकल डिवीजन होके क्वाड्रेंट स्टेज बनाएगा and 1 transfer division to form the 8 cell stage which is arranged in 2 tiers.
2 टायर्स का मतलब होता है दो दो लेवल पे ये अरेंज हो जाता है, एक ये। इसको हम लोग ऑक्टेंट स्टेज बोलेंगे। वी कॉल इट एज अ ऑक्टेंट स्टेज। इसका नाम रहेगा ऑक्टेंट। ऑक्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 8 सेल्स है। ये ऑक्टेंट स्टेज को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वन इज कॉल्ड एज एपीबेसल सेल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज हाइपोबेसल सेल। ये जो एपीबेसल सेल होता है ये टर्मिनल सेल्स होता है, और हाइपोबेसल सेल्स होता है वो नियर द सस्पेंसर होता है। सो इट इज टर्मिनल एंड इट इज नियर द सस्पेंसर। आई रिपीट, इट इज टर्मिनल, ये एंड पे प्रेजेंट है। एपी है, एपी का मतलब होता है आउटर, एपी का मतलब होता है एबो, एपी का मतलब होता है टिप, हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपो का मतलब होता है लोअर लेयर। सो इट इज नियर द सस्पेंसर। जो नियर द सस्पेंसर है वो आपको कॉटिलीडॉन देगा। इट इज गोइंग टू गिव यू द कॉटिलीडॉन। हाइपोकॉटिल आपको देगा, हाइपोकॉटिल। जबकि ये जो टर्मिनल सेल है इट फॉर्म द कॉटिलीडॉन एंड प्लूमिड। कितनी कॉटिलीडॉन फॉर्म करेगा? हम लोग डायकॉट पढ़ रहे हैं ना, तो ये 2 कॉटिलीडॉन फॉर्म करेगा। इट इज गोइंग टू फॉर्म द 2 कॉटिलीडॉन एंड इट इज आल्सो गोइंग टू फॉर्म द प्लूमिड। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आगे पढ़ते हैं। ये जो 8 एम्ब्रियो सेल्स है जो ऑक्टेन स्टेज है, नाउ दे विल डिवाइड पेरिक्लिनिकली। पेरिक्लिनिकल वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। पेरिक्लिनिकल का मतलब होता है लेयर वाइज डिवीजन। लेयर वाइज सेल डिवीजन है ना, इसका मतलब होता है लेयर वाइज सेल डिवीजन। इसमें लेयर वाइज सेल डिवीजन होता है। देयर इज अ लेयर वाइज सेल डिवीजन। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। डिवाइड पेरिक्लिनिकली टू प्रोड्यूस द आउटर लेयर ऑफ प्रोटोडर्म। इसमें आउटर लेयर बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोटोडर्म, और प्रोटोडर्म का जो दूसरा नाम है वो डर्मेटोजन भी है। तो यहाँ से हम फिर से डायग्राम में फोकस करने वाले हैं, है ना, डिवीजन करने वाले हैं ना। एवरीबडी विल फोकस हियर। ये जो डिवीजन है ये यहाँ पे पेरिक्लिनिकल डिवीजन अब होना चालू हो जाएगा। पेरिक्लिनिकल जब डिवीजन होगा तो मैंने जैसा आपको बताया कि पेरिक्लिनिकल डिवीजन का मतलब ये होता है कि ये लेयर वाइज डिवाइड करेगा। यस सर। तो ये आउटर लेयर देगा। आउटर लेयर, कैन यू सी दिस आउटर लेयर? ये आउटर लेयर है। प्लीज फोकस 100% फोकस, अपना फोकस बचा के रखो, संभाल के रखो। ये जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं प्रोटोडर्म। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोटोडर्म। अगर आपको ये प्रोटोडर्म नाम पसंद नहीं है तो हम इसको बोलते हैं डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं हम इसको? डर्मेटोजन बोलते हैं। एकदम नाम क्लियर है? इधर देखो, डर्म का मीनिंग लिखो। डर्म मीन्स लेयर, प्रोटो मतलब फर्स्ट। तो जो फर्स्ट लेयर है वो ये देगा। फर्स्ट लेयर किसको बोलते हैं? सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस है, तो ये एपिडर्मिस आपको देगा। इधर देखो, डर्मेटोजन, जन का मतलब होता है जनरेटिंग, और डर्मा का मतलब होता है लेयर। लेयर जनरेटिंग टिश्यू है, लेयर जनरेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग बोलेंगे डर्मेटोजन और इसको हम बोलेंगे प्रोटोडर्म। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। इसको हम डर्मेटोजन बोलेंगे और इसको हम प्रोटोडर्म बोलेंगे। सो दिस इज सुपर्ब। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पक्का? नाउ अभी क्या होगा, ये जो इनर मास ऑफ सेल है, ये जो इनर मास ऑफ सेल है ये 2 सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। देखो, ये एक इनर सेल का ये आउटर इनर लेयर है, ये आउटर इनर लेयर ऑफ मास ऑफ सेल है। ये बनाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम। और ये जो अंदर वाला जो इनर मास ऑफ सेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, इसको हम बोलते हैं इनर मास ऑफ सेल। ये इनर मास ऑफ सेल 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। एक आउटर लेयर जो कि इस समय ये है, और एक इनर मास ऑफ सेल, ये बीच सबसे अंदर का लेयर है जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है। ये जो इनर का लेयर ऑफ सेल है, ये इनर सेल को हम प्रोकैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोकैम्बियम बोलते हैं। और ये जो आउटर लेयर है इसको हम ग्राउंड मेरिस्टेम बोलते हैं। सो देयर इज अ ग्राउंड मेरिस्टेम, देयर इज अ प्रोकैम्बियम, देयर इज अ प्रोकैम्बियम, देयर इज अ ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोकैम्बियम आपको मालूम है
कैम्बियम देगा, वेस्कुलर टिश्यू देगा, स्टील देगा, कंडक्टिंग सिस्टम देगा, वेस्कुलर सिलेंडर देगा, ग्राउंड जो है वो आपको कॉर्टेक्स देगा, आपको पित्त भी देगा, ग्राउंड मेरिस्टेम आपको कॉर्टेक्स देगा और पित्त देगा। मैं चाहता हूं कि ये सारे स्ट्रक्चर जो नाम मैं ले रहा हूं इस समय, ये सारे स्ट्रक्चर आप एनाटॉमी के फर्स्ट पेज पे जो डायग्राम है उस डायग्राम में आप जरूर देखते रहे, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे बॉटनी जूलॉजी बॉटनी का जो पार्ट है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट और ये पर्टिकुलर पार्ट है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपके कॉन्सेप्ट में ये आपको एनाटॉमी को ज़्यादा अच्छे से सीखने में हेल्प करेगा। यू आर क्वाइट लकी कि आप आज इस लेक्चर में प्रेजेंट हैं और आप ये सारी बातें सीख रहे हैं मुझसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं एक बार और बता देता हूँ, देखो ऑक्टेन स्टेज है, ऑक्टेन स्टेज है, ये पेरिक्लिनिकल डिवीजन करेगा, 2 लेयर बनाएगा। अंदर का लेयर इसको इनर मास सेल बोलेंगे, आउटर का लेयर इसको हम डर्मेटोजन बोलेंगे। डर्मेटोजन नाम पसंद नहीं है, प्रोटोडर्म बोलो। तो प्रोटोडर्म क्या है, ये आउटर लेयर है। डर्मेटोजन क्या है, ये भी आउटर लेयर है। फ्यूचर इसका क्या है, बहुत अच्छा है, एपिडर्मिस देगा, एपिडर्मिस देगा, वेरी गुड। अब ये जो इनर मास सेल है ये फिर से डिवाइड और रीडिवाइड करेगा और ये डिफ्रेंशिएट होके 2 लेयर बनाएगा, एक इनर मास ऑफ सेल और एक आउटर लेयर। ये जो आउटर लेयर है वो ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाएगा, जो अंदर का लेयर है वो कैम्बियम बनाएगा, इसलिए हम इसको प्रोकैम्बियम बोलते हैं और इसको हम ग्राउंड मेरिस्टेम बोलते हैं। ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे तो समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। अब इसी चीज का हम थ्योरी पार्ट सीखेंगे, इसी चीज को हम लिखावट में पढ़ेंगे। अब फोकस हियर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोकस हियर। ये जो ऑक्टेन स्टेज है ये पेरिक्लिनिकल डिवीजन करेगा, यहीं पे करेगा, नीचे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 8 एम्ब्रियोनिक सेल ऑक्टेन स्टेज जो है ये पेरिक्लिनिकल डिवीजन करेगा, मतलब ये लेयर वाइज सेल डिवीजन करेगा। जब ये लेयर वाइज सेल डिवीजन करेगा तो ये आउटर लेयर ऑफ प्रोटोडर्म बनाएगा। मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड करते रहो। ये प्रोटोडर्म बनाएगा, प्रोटोडर्म का दूसरा नाम डर्मेटोजन रहेगा। डर्मेटोजन का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये फ्यूचर में एपिडर्मिस बनाएगा। क्या बनाएगा, एपिडर्मिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनर मास ऑफ सेल डिफरेंशिएट इनटू फॉर्म द प्रोकैम्बियम एंड द ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ये भी आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो ये है प्रोकैम्बियम, ये प्रोकैम्बियम बनाएगा एंड ग्राउंड मेरिस्टेम बनाएगा, ठीक है। सो देयर इज अ प्रोकैम्बियम, इसको हम प्लियोम बोलेंगे, और ग्राउंड मेरिस्टेम बोलेंगे, इसको हम पेरिब्लेम बोलेंगे। वी कॉल इट एज अ पेरिब्लेम, वी कॉल इट एज अ प्लीरोम, प्लीरोम। तो ये इसके दूसरे नाम है पेरिब्लेम एंड प्लियोम। ये आपको ग्राउंड टिश्यू देगा, ग्राउंड मेरिस्टेम देगा। ग्राउंड मेरिस्टेम का मतलब ये आपको पिथ देगा, ये आपको कॉर्टेक्स देगा, जबकि ये जो लेयर है ये आपको स्टील देगा, मतलब वेस्कुलर स्ट्रैंड देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोडर्म फॉर्म द एपिडर्मिस, दिस इज कॉल्ड प्रोटोडर्म। यस सर, so we can just check out the spelling. It's called protoderm. This is called protoderm, and this protoderm is going to form the epidermis. Procambium will give rise to steel or vascular strand, vascular cylinder. Ground meristem is going to give you the product produces the cortex and pith. ये cortex और pith देगा। I think this concept is very nice, very clear, है ना? ये है ना? Very good. Initially the embryo is globular and undifferentiated. तो यहाँ पे फिर से चेंज होता है, ये ब्लू कलर में आ गया है, मतलब फिर से चेंज होता है। तो ये टू अगेन फोकस ऑन टू द डायग्राम। नाउ प्लीज फोकस हियर। ये आपको कौन से शेप में दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो? एम्ब्रियो आपको कौन से शेप में दिखाई दे रहा है? तो यू कैन सी देयर इज अ ग्लोबुलर शेप,
कौन सा शेप? ग्लोबुलर. Kindly focus. Now procambium is going to form the xylem phloem, ground tissue is going to form the cortex and pith, dermatogen is going to form the epidermis. So these layers are going to be formed. Now this particular embryo is going to be called as a globular embryo. इसको हम जी मतलब ग्लोबुलर स्टेज बोलेंगे. वी कॉल इट एज अ ग्लोबुलर स्टेज. And this globular stage is always going to be radial in symmetry. They are always going to be radial in symmetry. ये radial in symmetry, ये radial symmetry. Is that clear? पक्का? तो ये radial symmetry है, इसको याद रखना. Now later on it is also proembryo, and later on it is going to form the radicle, cotyledon and plumule. Once these three important structures are going to be formed, R for radicle, C for cotyledon and P for plumule, then this embryo is a actual embryo. This is the actual embryo, and its symmetry will now become the bilateral symmetry. And this is the final embryo of the diagram which is going to be formed. This is called as a hypocotyl. This is called radicle and root tip. You know who is going to give radicle and root tip. You know who is going to give hypocotyl, and who is going to give the plumule, who is going to give the cotyledon. I think these parts are very, very clear to you. We can focus on the theoretical part of this here. Initially, the embryo is globular. I just highlight the part called as a globular, and it and undifferentiated. ये differentiated नहीं है. Of course, ये undifferentiated है. Now what will happen? Early embryo with the radial symmetry. So I just highlight this radial symmetry, and it is called as a proembryo. It means proembryo और mature embryo में difference ये रहेगा कि proembryo will always have a radial symmetry, and once it is transformed into the actual embryo, it always going to develop the radicals, plumule, radicle, plumule and cotyledons are going to be developed, and now it is called as an actual embryo. The two cotyledon differentiated from the sides with the faint plum in the center. दो cotyledon develop होंगे, दो cotyledon side में develop होंगे, है ना, और बीच में थोड़ा सा structure develop होगा जिसको हम लोग plumule नाम देंगे, plumule देंगे. ठीक है. faint का मतलब होता है बहुत ही बारीक, faint का मतलब होता है बहुत ही light. plumule बनेगा in the center में बनेगा. At this time embryo become heart shape. Embryo heart shape हो जाएगा. जैसे ये heart shape हो गया, इसकी radial symmetry destroy हो जाएगी, and it is going to form the bilateral symmetry. Rate of growth of cotyledon is very high, so that they elongate tremendously. So I think this much part is over. और हम लोगों ने आपको ये जो पूरा डायकॉट का एम्ब्रियो है डेवलपमेंट, ये पर्टिकुलर डायग्राम हमने आपको एक्सप्लेन किया. इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए, और वो सभी क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग सीड के बारे में बात करते हैं, एवरीबडी नो सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड क्या है? सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड एंडोस्पर्मिक भी हो सकता है और नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकता है. इज दैट क्लियर? देन in some seed remain nucellus. In some seed nucellus persist होता है. कुछ सीड में क्या होता है? nucellus जो होता है वो persist होता है. In some seed nucellus is going to be persist. nucellus is going to be persist. nucellus हमेशा रहता है, which is nothing but the twin. nucellus हमेशा persist होता है. some seed remains देखो ये न्यूसेलस है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है. ये एम्ब्रियो सैक आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा ओव्यूल. तो इसके बाहर ना पर्सिस्टेंट कौन रहेगा? न्यूसेलस. न्यूसेलस मरा नहीं, न्यूसेलस यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है. तो रेसिडुअल न्यूसेलस विच पर्सिस्ट इन द सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म. क्या बोलते हैं हम इसको?
पेरिस्पर्म बोलते हैं, हाईलाइट कर लो, मोस्ट नेग्लेक्टेड वर्ड है ये, मोस्ट नेग्लेक्टेड वर्ड है एनसीईआरटी का। बच्चों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है इसको समझने में। तो आप लोग क्या करो ना, आप ब्लैक पीपल लो, आपके पास घर है, वेरी गुड, घर में किचन है, वेरी गुड, आप ब्लैक पीपल लो जाके, ब्लैक पीपल लोगे ना तो उसके सीड के ऊपर ना ऐसा 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 कवरिंग होता है। ये जो कवरिंग है ना ये पेरिस्पर्म है। आपको नहीं समझा, आप अपने घर पे जाओ, किचन में जाओ और ब्लैक पेपर लो, ब्लैक पेपर मसाले का डिब्बे में रहेगा, मम्मी को पूछो, काली मिर्च बोलते हैं इसको, काली मिर्च है ना, और उसके ऊपर आपको ना ऐसी कोटिंग आएगी, कोटिंग, ये कोटिंग को हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। पेरिस्पर्म नीट पूछेगा क्या है, इट इज अ रेसिड्यूअल न्यूसेलस है। अरे क्या है, रेसिड्यूअल न्यूसेलस है, इट इज अ रेसिड्यूअल न्यूसेलस। मीरे मीरे, यस, मीरे मीरे, यस यस, मीरे मीरे। तो ब्लैक पीपर में ऐसा पाया जाता है, कॉफी में ऐसा पाया जाता है, कैस्टर में भी ऐसा पाया जाता है। और भी दो एग्जाम्पल है, कार्डेमम में भी पाया जाता है और निम्फिया में भी पाया जाता है। ठीक है, तो पेरिस्पर्म के 5 एग्जाम्पल है। कौन से 5 एग्जाम्पल? ब्लैक पीपर घर की बात है, कॉफी घर की बात है, कैस्टर घर के बाहर की बात है, कार्डेमम भी हम लोग यूज करते हैं मसालों में, और निम्फिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एज द एम्ब्रियो रीचेस मैच्योरिटी, जो एम्ब्रियो है वो मैच्योरिटी जैसे ही रीच करता है, इट्स फर्दर ग्रोथ विल बी सस्पेंडेड, इसका ग्रोथ सस्पेंड हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इनिबिटर्स, कुछ ग्रोथ इनिबिटर्स होते हैं, है ना, एब्सेशन ऑफ फनिकुलस, एब्सेशन ऑफ फनिकुलस की वजह से हो सकता है ऐसा, चेंजेस इन इंटेगमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, द सेल्स ऑफ इंटेगमेंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीड कोट, सीड कोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। 2 मिनट में मीटिंग खत्म होगी, यू कैन ज्वाइन अगेन। आउटर लेयर को टेस्टा बोलेंगे, इनर लेयर को टेगमेंट बोलेंगे। रिपीट, आउटर इंटेगमेंट टेस्टा बनाएगा, इनर इंटेगमेंट टेगमेंट बनाएगा। टेस्टा इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी थिक, थिक रहेगा, ये रेजिस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंट रहेगा। ये जो टेगमेंट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी थिन एंड इट इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट, it is going to be always transparent. So I think this concept is very very clear to you. पक्का? Superb. The moisture content of the seed decreases and it reaches 10 to 15%. इसमें जो पानी का जो कंटेंट है वो कम होगा और वो 10 to 15 होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये मर जाएगा, सेल विल बी रिमेन सर्वाइव, वायबल रहेगा। In this dry seed, embryo occurs in a state of inactivity. एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं हम इसको? डॉर्मेंसी बोलते हैं। इट विल गो टू स्टेज, दैट स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ डॉर्मेंसी। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा वो हम लोग बात करेंगे, बट डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? मैंने यहाँ पे बताया ग्रोथ इनिबिटर्स आएंगे या एब्सेशन ऑफ फनिकुलस होगा या चेंजेस इन इंटेगमेंट, ये सब कुछ सीड की ग्रोथ को, एम्ब्रियो की ग्रोथ को सस्पेंड कर देगा, रोक देगा, बंद कर देगा। टेस्टा थिक और रेजिस्टेंट सीड कोट बनाएगा, टेस्टा, और जो आउटर इंटेगमेंट से बनेगा। ठीक है, दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सीड कोट में आउटर इंटेगमेंट टेस्टा बनाएगा, इनर इंटेगमेंट टेगमेंट बनाएगा। मॉइस्चर कंटेंट जो होगा, वाटर का कंटेंट हो जाएगा सीड का, वो डिक्रीज होकर 10 to 15% होगा। स्टिल इस कंडीशन में भी सीड इज गोइंग टू बी ऑलवेज वायबल, वो जिंदा रहेगा, बट वो डॉर्मेंट रहेगा। डॉर्मेंसी डू नॉट इंडिकेट डेथ। ड्राई सीड रहेगा, एम्ब्रियो ऑकर इन अ स्टेट ऑफ इनएक्टिव कंडीशन कॉल्ड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब होता है वो रेस्टिंग कर रहा है, उसका ग्रोथ सस्पेंडेड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो डेड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो आगे हमको क्या फोकस करना है, हमको आगे फोकस करना है माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल के बारे में। ये जो माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल रहता है, माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल, it is change it is change in micropyle of seed. Yes sir. माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल कौन से फॉर्म में चेंज होता है? वो चेंज नहीं होता है, वो सीड में भी माइक्रोपाइल ही बनाता है। यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर? माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल इज चेंज इन माइक्रोपाइल ऑफ सीड, मतलब माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइल ऑफ सीड बनाता है, ऐसा आपको समझना है। माइक्रोपाइल क्या है? इट्स अ स्मॉल ओपनिंग, और यही माइक्रोपाइल यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है सीड में भी, मतलब सीड में भी आप माइक्रोपाइल देख सकते हो, ओव्यूल में भी आप माइक्रोपाइल देख सकते हो। माइक्रोपाइल में, ओव्यूल में इसका फंक्शन है पोलन ट्यूब की एंट्री देना, लेकिन सीड में इसका फंक्शन है ऑक्सीजन और पानी आने के लिए। यस सर। और इसी माइक्रोपाइल से रेडिकल बाहर निकलता है। कौन निकलता है? रेडिकल वही स्ट्रक्चर है जो आपको रूट देने वाला स्ट्रक्चर है, जो आपको रूट देने वाला स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर यहां से निकलता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब आपको समझना है कि ये जो ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल, इट इज गोइंग टू बी स्टिमुलेटेड टू फॉर्म द फ्रूट वॉल। ये स्टिमुलेट होकर क्या बनाएगा? फ्रूट वॉल बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्रूट वॉल बनाएगा। फ्रूट वॉल इज नथिंग बट द पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिकार्प बोलेंगे। वी कॉल इट एज अ पेरिकार्प। इन सम केसेस फ्रूट वॉल इज नथिंग बट द पेरिकार्प। एक फेवरेट सवाल होता है नीट में, जिसमें कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको मालूम है कि एग किस में कन्वर्ट हो जाता है? एग ज़ायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। ऊ स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। एंटीपोडल सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है? मर जाता है। सिनरगीड सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है? मर जाता है। सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोलर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोपाइल किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइक्रोपाइल में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। आउटर इंटेगमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है। इनर इंटेगमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है? फनिकुलस जो है, फ्रूट ऑफ स्टॉक ऑफ ओव्यूल, वो स्टॉक ऑफ फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्टॉक ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो न्यूसेलस किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक दिस इज अ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। चैलाजा इज गोइंग टू बी रिमेन लाइक दैट ओनली, मतलब वो डीजनरेट हो जाएगा चैलाजा कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, वो वहीं से ऑरिजिन होता है इंटेगमेंट, तो उसी को पार्ट को बोलते हैं चैलाजा। तो इन सम केसेस ओवरी वॉल पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी नीट का एक वन ऑफ द क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। इन सम केसेस द थैलेमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑल्सो शोज प्लोरिफरेशन अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी वॉल। ओवरी वॉल के साथ साथ थैलेमस भी जो होता है वो फ्लावर का पार्ट बन जाता है और वो फ्रूट बनाता है। और एप्पल में ये पाया जाता है। एप्पल में जो आप खाते हो ना, एप्पल का जो पार्ट जो आप ईट करते हो, खाते हो, वो एक्चुअली में थैलेमस है। स्ट्रॉबेरी में भी वैसा ही है, कैशू में भी ऐसा ही है। जो पार्ट आप एडिबल खाते हो उसको हम लोग वो पार्ट जो होता है वो थैलेमस का होता है। और जब कोई भी थैलेमस है तो वो फॉल्स फ्रूट बनाता है। क्या बनाता है? फॉल्स फ्रूट बनाता है। फॉल्स फ्रूट। यस सर। प्लोरिफरेशन मतलब ग्रो होना। तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रूट इन विच नो पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप अलॉन्ग विद द ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। जो ओवरी से डेवलप हुआ है जो फल, उसको सच्चा फल बोलते हैं। फ्रूट in which
नो पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप अलॉन्ग विद द ओवरी, ओवरी के साथ कोई और पार्ट डेवलप नहीं हुआ, तो खाली ओवरी डेवलप हुआ ना, तो ये सच्चा फल बोलेंगे। ऑब्वियसली हम हमेशा बोलते हैं फर्टिलाइज द ओवरी, फर्टिलाइज द ओवरी इज कॉल्ड एज अ फ्रूट, हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। ओके, सम फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, some fruit develop without fertilization, they are called as a seedless fruit or parthenocarpic fruit, ठीक है। some fruit develop without fertilization, they are called seedless fruit, and इसको हम parthenocarpic fruit भी बोलते हैं। इसमें बनाना एग्जाम्पल आएगा जो आपको समझना है। पार्थेनोकार्पी होता है, दे कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली बाय मीन्स ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की वजह से आप पार्थेनोकार्पी डेवलप कर सकते हो। आपने बचपन में सीखा हुआ है ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्थेनोकार्पी, गिबरलिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्थेनोकार्पी, ये पार्ट आपने सीखा हुआ है जी। तो मेरे ख्याल से आज हम यहाँ तक खत्म करते हैं। वी